نگراں پنجاب حکومت کا صحت کے شعبے میں انقلابی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ بہاولپور کے بون میرو اینڈ تھیلیسیمیا سینٹر کے لیے 2.95 کروڑ 2 لاکھ روپے کے فنڈز منظور کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا بون میرو اینڈ تھیلیسیمیا سینٹر 2009 سے نامکمل تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نگران پنجاب حکومت کا صحت کے شعبے میں انقلابی اقدامات کا سلسلہ جاری۔ بہاولپور کے بون میرو اینڈ تھیلیسیمیا سینٹر کے لیے 2.95 کروڑ روپے کے فنڈز منظور کر لیے گئے۔ حکومت پنجاب کے شعبہ صحت میں انقلابی اقدامات جاری۔ بہاولپور میں 2009 سے نامکمل ملک کے سب سے بڑے بون میرو اینڈ تھیلیسیمیا سینٹر کی بھی سنی گئی۔ نگراں حکومت پنجاب نے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے 2.95 کروڑ 2 لاکھ روپے کے فنڈز منظور کر لیے۔ 14 سال سے نامکمل منصوبہ جون 2024 تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا 2009 میں اینڈ دین ڈیو ٹو ویریس ریزنز وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلا گیا۔ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دی پریزیڈنٹ گورنمنٹ کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کو ٹیک اپ کیا ہے اور اس بات کی ایک ہمیں انڈیکیشن دی ہے کہ اٹ ول بی ٹیکن ٹو کمپلیشن۔ جنوبی پنجاب میں محکمہ لائف اسٹاک کا عملہ متحرک، دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافے کے لیے شارٹ ٹرم پلان تیار کر لیا۔ قابل عمل منصوبہ 2 دن میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کیا جائے گا۔ لائف اسٹاک کے تمام وسائل کو بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات رضا ملک کی رپورٹ سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لائف سٹاک کو بہتر بنانے کا مشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لائف سٹاک کو بہتر بنانے کا مشن جنوبی پنجاب میں لائف سٹاک دیہی علاقوں میں رہنے والوں کے لیے ذریعہ معاش ہے۔ جانوروں کے دودھ اور گوشت کی خرید و فروخت آمدنی کا بڑا ذریعہ ہے۔ سیکٹری لائف سٹاک کا کہنا تھا کہ فوری بہتری کے لیے شارٹ ٹرم پلان 2 دن میں وزیر اعلیٰ کو پیش کیا جائے گا۔ بیماریوں کی تشخیص اور جدید تحقیق کے لیے 11 لیبارٹریاں فعال ہیں۔ اب ہمارے پاس آلموسٹ 11 کے قریب ہماری جو ہے اس ساؤتھ پنجاب میں وہ ڈائگنوسٹک جو ہے وہ لیبز موجود ہیں ہمارے پاس۔ یعنی یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ڈائگنوسٹک لیب کا بہت بڑا رول ہے، اور ویکسینیشن جو ہے ویکسینیشن بھی بڑی پراپر ہے۔ لائف سٹاک کو مضبوط بنانے کے لیے 952 ہسپتال اور ڈسپینسریوں کو مکمل فعال رکھا جائے گا۔ 99 موبائل ڈسپینسریوں پر مشتمل گاڑیاں متحرک رہیں گی۔ 13 فارم سیمن پروڈکشن یونٹ کی صلاحیت بڑھانے کا فیصلہ۔ اس ساؤتھ پنجاب میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تقریباً 3 to 9 ملین کے قریب جو ہے وہ جو کاوز ہیں جو 6 سے 8 مہینے کے لوگ ہوتے ہیں، تو آلموسٹ 6 سے 9 مہینے کے وہ لوگ اپنے بیچارے اپنی غربت کی بنیاد پہ بیچ دیتے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں بھینسوں کی تعداد 52,48,000، گائے اور بیل 66 لاکھ، بھیڑیں اور بکریاں 99,77,000 ہیں۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ رضا ملک، روہی، بہاولپور۔ میاوالی میں وکلا کی کوششیں رنگ لے آئیں، ڈسٹرکٹ بار کو ہائی کورٹ راولپنڈی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا، وکلا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میاوالی میں وکلا کی کوششیں رنگ لے آئیں، ڈسٹرکٹ بار کو ہائی کورٹ راولپنڈی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ سینئر ایڈوکیٹ عنایت اللہ امان کا کہنا تھا کہ وکلا اور عوام کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ ڈسٹرکٹ بار کا راولپنڈی ہائی کورٹ کے ساتھ منسلک ہونے پر وکلا اور عوام کا وقت بچے گا اور اخراجات میں بھی کمی آئے گی۔ پہلے میاوالی کے لوگ اور وکلا لاہور ہائی کورٹ لاہور میں جا کے اپنے کیسوں کی سماعت کراتے تھے۔ اب جو ہے ہماری باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے اور راولپنڈی بینچ کے ساتھ میاوالی کو منسلک کر دیا گیا ہے۔ اس میں وکلا کا اور عوام کا بہت زیادہ فائدہ ہے، ان کے وقت کی بھی بہت زیادہ بچت ہوگی اور ان کو بہت کم اخراجات میں اپنے کیس لڑنے کا موقع ملے گا۔ صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سلیم اللہ خان نے کہا کہ بار میں جشن کا سماں ہے، آئندہ 3-4 دن تک وکلا روزانہ جشن منائیں گے، جبکہ کل ڈسٹرکٹ بار میں بڑا جشن منایا جائے گا۔ یہ تو جشن شروع ہو گیا آج سے۔ آج ہماری 11 بجے جہاں پر ایک پارٹی تھی، اسی سلسلے میں ہم نے منعقد کی۔ کل انشاءاللہ 9:30 بجے ہے، ہفتے والا دن پھر صبح تقریباً 10 بجے پھر ایک پارٹی ہے۔ اب تو جشن انشاءاللہ چلتے ہی رہیں گے، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ڈسٹرکٹ میاوالی کو راولپنڈی لاہور ہائی کورٹ لاہور پرنسپل سیٹ کی بجائے راولپنڈی ہائی کورٹ بینچ کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ بار کا راولپنڈی ہائی کورٹ کے ساتھ منسلک ہونے پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاوالی۔ ملک بھر میں عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں۔ پنجاب پولیس نے اس حوالے سے سیکیورٹی پلان ترتیب دے کر محکمہ داخلہ کو بھجوا دیا ہے۔
आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां जारी। पंजाब पुलिस ने इस हवाले से सिक्योरिटी प्लान असर-ए-नो तरतीब दे दिया। सिक्योरिटी प्लान महकमा दाखिला को भिजवा दिया गया। मुल्तान समेत सूबा भर में 2,65,000 की फोर्स दरकार है। पंजाब पुलिस 1,40,000 की नफरी फराहम करेगी, जबकि रेंजर्स और पाक फौज की 1,25,000 जवान खदमात सर अंजाम देंगे। रजाकार भी इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर होंगे। पंजाब पुलिस ने पहले 1,05,000 नफरी की फराहमी से आगाह किया था। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन को 4 कैटेगरीज A+, A, B और C में तकसीम किया गया है। A+ और A कैटेगरी में 6,956 पोलिंग स्टेशन, B में 15,155 और C कैटेगरी में 25,351 पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। हर हलके के लिए 300 मुलाजिमीन की नफरी बैकअप पर रहेगी। मॉनिटरिंग के लिए IG पंजाब ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। रहीम यार खान में इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबात के लिए 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तरबियती वर्कशॉप में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर समेत रिटर्निंग ऑफिसर्स भी शरीक हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात के शफाफ इनेकाद के लिए मुतहर्रिक। रहीम यार खान में इस हवाले से 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी समेत 6 कौमी और 13 सूबाई हलकों के रिटर्निंग ऑफिसर्स वर्कशॉप में शरीक हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वहीद फिरोज ने तरबियती सेशन में रिटर्निंग ऑफिसर्स को आईनी जिम्मेदारी, एक्ट और आइन, इलेक्शन के मराहिल, पब्लिक नोटिस का इजरा, कागजात नामजदगी, जांच पड़ताल, इब्तदाई उम्मीदवारों की फहरिस्त का इजरा, उम्मीदवार के कागजात नामजदगी की वापसी, निशानात के इजरा का तरीकाकार, हतमी लिस्ट के इजरा बारे तरबियत दी। 19 आरओज जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से, जिसका नोटिफिकेशन 11 दिसंबर को किया गया है। उनकी 3 रोज़ा ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह आज। तो उन्हें जो लीगल प्रोविजंस हैं और जो तरीक़ाकार है इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के हवाले से, तो उसके बारे में मुकम्मल तरबियत दी जा रही है। और इसके अलावा नादरा के ताउन से हम जो है वो EMS की भी ट्रेनिंग जो है वो तीसरे दिन के लिए हमने अरेंज की हुई है। तरबियती वर्कशॉप के आखिरी रोज नादरा के तावन से ऑनलाइन सिस्टम की भी तरबियत दी जाएगी, जिसमें बर वक्त रिजल्ट इकट्ठा करने और फिर नताइज समेत तमाम मराहिल को बर वक्त सर अंजाम देने में मदद मिलेगी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान में महकमा औकाफ की नाअहली या गफलत, करोड़ों रुपए की लागत से लगाई गई सोलर प्लेटें नकारा हो गई। 4 साल गुजरने के बावजूद सोलर प्लेटें फाल ना हो सकी। महकमा औकाफ की बड़ी नाअहली, करोड़ों रुपए की लागत से लगाई गई सोलर प्लेटें नाकारा हो गईं। 500 से ज्यादा सोलर प्लेटों का मकसद मुल्तान के दरबारों को सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करना था। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया, हजरत शाहरुख आलम मुल्तानी और किला कोना कासिम बाग को सोलर पर मुंतकिल करके बिजली के भारी बिलों से निजात हासिल करना थी। शहरियों का कहना था कि आवाम का खून चूस कर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। हुकूमत करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। करोड़ों रुपए लगाए हुकूमत ने और ये बिल्कुल नकारा हो गई हैं। आप देख भी सकते हैं, हुकूमत से हमारी यही गुजारिश है कि इन पे कोई काम करें ताकि बिजली पैदा हो। हुकूमत ने करोड़ों रुपया लगा दिया इधर, लगाने का फ़ायदा जब इसको चलाना नहीं है, रात को जो लाइटें हैं वो नहीं इस पर चलती, तो इतना फंड लगाने का हमारे गरीबों का खून जो चूस चूस कर इधर लगा रहे हैं वो फ़ायदा उनका। किसी ऐसी जगह पर इस्तेमाल करो जिधर मतलब हुकूमत को भी फ़ायदा हो और आवाम को भी फ़ायदा हो। शहरियों ने मजीद कहा कि 4 साल गुजरने के बावजूद प्लेटें गैर फ़ाल हैं। देखभाल ना होने की वजह से सोलर प्लेटें गंदगी का ढेर बन गईं। एक आना भी नहीं चलती, फ्रंट की जो लाइटें हैं वो सारी बुझ जाती हैं। रात को वहाँ अंधेरे पे सोती हैं। यहाँ पे कोई बेचारा सोता है, डेंगू मच्छर है, कुछ भी है, आबी बुखार जो भी है, इनके अंदर घुसे हुए देख रहे हो, झाड़ियाँ कैसे पड़ी हैं। इतना पैसा लगाया, वो काम करें जो कि आवाम को भी पैकेज मिले। शहरियों का कहना है कि हुकूमत करप्ट ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। कैमरामैन आसिफ के साथ नादिर मजहर, रोही, मुल्तान। हारूनाबाद के नवाही गांव 26/3R के करीब नहर में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। नहर टूटने की वजह से सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। हारूनाबाद के नवाही गांव 26/3R के करीब नहर में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। रवा साल 3R में 7वीं बार शगाफ पड़ा है। शगाफ पड़ने की वजह से सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया, जिससे गंदम और सब्जा चाराजात की फसल शदीद मुतासर होने का खदशा है। किसानों ने कहा कि रात 12 बजे महकमा अनहार को शगाफ पड़ने की इत्तला दी, मगर अमला दिन 12 बजे पहुंचा, जिसकी वजह से उनका नुकसान हुआ। जी इन्होंने 12 वजे की इतला दी असी, लेकिन अमल दरामद नहीं होया। महकमा आन के इथों देख के वापस चला गया। ठीक है, तो सुबह हुण आए, इन्होंने कह को क्या नाका बंद करो, लेकिन आ काम तुहाडे सामने जो हो रहा। मुतासरा किसानों ने मुतालबा किया है कि उनके ज़राई टैक्स और आबियाना मुआफ करके नुकसान का अजाला किया जाए। ना सानू ਇਹਦਾ मुआवजा दिता जाए, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ है। ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਇਤਲਾਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ
ਪਿੱਛੋਂ ਘਟਾਤਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਕਾ ਕੋਈ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਜੀ। SDO महकमा अनहार का अपने मौक़िफ़ में कहना था कि उनका अमला जल्द इस शगाफ को पुर कर लेगा। किसानों का मजीद कहना था कि बर वक्त इत्तला के बावजूद महकमा अनहार अमले का गफलत का मुजाहरा हम पर जुल्म है। हुकूमत हमारे नुकसान का अजाला करे। कैमरा टीम के साथ शर्जील हाशिर, रोही, हारूनाबाद। फूड अथॉरिटी ने जनूबी पंजाब भर में मिलावट माफिया के खिलाफ शिकंजा कस लिया। फूड सेफ्टी टीम ने सरगोदा में 1200 किलो फंगस ज़दा अचार पकड़कर तलब कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी सूबा भर में मिलावट माफिया के खिलाफ इन एक्शन। सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी का गैर मयारी फूड ब्रांड्स के खिलाफ घेरा तंग। चेकिंग के दौरान 1200 किलो फंगस ज़दा मुजरे सेहत अचार तलब कर दिया। फूड सेफ्टी टीम ने सुलेमान कॉलोनी में अचार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा और मौके से मुजरे सेहत ऑयल, सिरका, तेजाब और गैर मयारी मसाले जात बरामद कर लिए। फंगस का जायका खत्म करने के लिए केमिकल ज़दा फ्लेवर्स और रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था। नाकस खुराक सप्लाई करने पर फैक्ट्री मालिक को 50,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने भलवाल में 90 मन मुजरे सेहत गोश्त पकड़ लिया। मुल्जमान गोश्त रावलपिंडी से इस्लामाबाद ले जा रहे थे। पंजाब फूड अथॉरिटी, लाइव स्टॉक और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में पकड़े गए गोश्त को तलब कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में पंजाब फूड अथॉरिटी ने खानगढ़ बाईपास पर नाकाबंदी करके दूध बरदार गाड़ी धर ली और चेकिंग के बाद 450 लीटर मुजरे सेहत दूध मौके पर तलब कर दिया गया। फूड अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि मिलावट माफिया को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। डेरा गाजी खान में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुलाजमीन की रेफरेंडम 2023 का अमल मुकम्मल। रेफरेंडम में बल्दिया एम्प्लॉयज यूनियन ने मैदान मार लिया। डेरा गाजी खान में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुलाजिमीन के रेफरेंडम का इनेकाद। 26 साल बाद होने वाले रेफरेंडम में वोटर्स ने भरपूर हिस्सा लिया और अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हुए बल्दिया एम्प्लॉयज यूनियन को फतह दिला दी। बल्दिया एम्प्लॉयज यूनियन ने 251 जबकि मद्दे मुकाबला आजाद शमा यूनियन ने 188 वोट हासिल किए। बल्दिया एम्प्लॉयज यूनियन के साबिर हुसैन चेयरमैन, मोहम्मद हुसनैन फराज सदर और मिर्जा मोहम्मद ईसा जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। 9 मुंतखब ओहदेदारान का कहना था कि वो तमाम दोस्तों के मशकूर हैं जिन्होंने इन पर एतमाद का इजहार किया और वोट से इन्हें मुंतखब किया। हम मुलाजिमीन के साथ हैं और इनको हुकूक दिलवाने की कोशिशें जारी रखेंगे। सपोर्टर्स ने बल्दिया एम्प्लॉयज यूनियन की जीत पर ओहदेदारान को मुबारकबाद दी और इन्हें हार पहनाए। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही न्यूज, डेरा गाजी खान। मुजफ्फरगढ़ में महकमा सोशल वेलफेयर और फलाही तंजीम दुआबा फाउंडेशन ने सजाया ट्रेड फेस्टिवल। डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली ने ट्रेड फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। मुजफ्फरगढ़ में महकमा सोशल वेलफेयर ने एक रोजा तिजारती मेले का इनेकाद किया। सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स में सजे तिजारती मेले का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ मियां उस्मान अली ने किया। तिजारती मेले में मकामी सतह पर तैयार मसनूआत और रवायती खानों के स्टॉल्स लगाए गए थे। डिप्टी कमिश्नर ने स्टॉल्स का मुआयना किया और कारीगरों की हुरनमनी को सराहा। इनका कहना था कि महकमा सोशल वेलफेयर का ये एक अच्छा इकदाम है। मकामी सतह पर तैयार मसनूआत को मार्केट तक रसाई दी जानी चाहिए। ऐसे प्रोग्राम से मकामी छोटी सनतों को फरोग मिलता है और घरों में काम करने वाली खवातीन की मसनूआत की भी पजीराई होती है। इस जिला में एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है और आज इस हवाले से हमने मुख्तलिफ जो काम किए हुए थे उन प्रोडक्ट को यहाँ पे पेश करना था ताकि लोगों को ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत की अहमियत का पता चले और अपने ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वीमेन जो हैं और ख़ास तौर पे जो 2 साल के उम्र के कम के बच्चे हैं उनकी सेहत के ऊपर और उनके न्यूट्रिशन के ऊपर काम किया जा सके। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अजहर यूसुफ ने इस मौके पर कहा कि तिजारती मेले का इनेकाद का मकसद मकामी मसनूआत को फरोग देना है। खवातीन के तैयार करदा मसनूआत को मार्केट तक रसाई हासिल है। दराज ऑनलाइन पर भी मकामी मसनूआत को रसाई दी जाएगी। खवातीन भी इस मौके पर खुश दिखाई दी। आज एक ट्रेड फेस्टिवल का इनेकाद किया है जिसका मकसद जो हुनरमंद खवातीन दूर दराज इलाकों में अपने हुनर के करिश्मे दिखाकर मिडल मैन के हाथों एक्सप्लॉइट होती हैं उनको मिडल मैन की एक्सप्लॉइटेशन से निजात दिलाई जा सके और इनके डायरेक्ट मार्केट लिंकेजेस डेवलप करवाए जा सके ताकि इनको इनके काम का मुनासिब मुआवजा मिल सके। तिजारती मेले में खवातीन के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीमों ने भी मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए। कैमरामैन उमैर शेख के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान में रोही के ज़रिए एहतमाम 1 जनवरी को सराय की फैमिली फूड फेस्टिवल सजेगा। इस फेस्टिवल की तैयारियों के हवाले से मुशावरती इजलास मुनक्किद किया गया।
मुल्तान सरायकी झोंक में सरायकी फैमिली फूड फेस्टिवल बारे मुशावरती इजलास का इनकाद। रोही के ज़ेरे तमाम सरायकी फैमिली फूड फेस्टिवल 1 जनवरी को सजाया जाएगा। मुशावरती इजलास में सरायकी वसेब के रिवायती खाबे, डाले, दाबत, गुड़, शक्कर, डोली रोटी, हलवा, चूरी, सरायकी सब्जी, चरडा, साग, मक्खन, लस्सी, सुहांजना, मिसी रोटी, जोड़े और सिवैयां बारे गुफ्तगू की गई। अज असारे देसी खाने मौजूद हैं। तुसा देखते पे हो जेवड़न मक्खन मकई है और गंदलें दा साग है। तुसा देखो कि भाई सरायकी पुलाव है, जरहना शक्कर है, गोड़े और इवें ही जरहना सुहांजना है, डोली रोटी है, ये सारा कुछ मौजूद है। तो इंशाअल्लाह ताला जिवें तुसा फरमाया 1 जनवरी को सरायकिस्तान कौमी कौंसल ते सही रोही टीवी दे इश्तराक नाल बहु वड्डा मेला सजदा। चेयरमैन सरायकिस्तान कौमी कौंसल ज़हूर दरेजा, मारूफ दानिश्वर, प्रोफेसर परवेज कादिर खान, चौधरी मोहम्मद अफजल कमूका, ताहिर दरेजा, सरायकी शायर जावेद शानी, सरायकी यूथ लीडर जुबैर वैन, सरायकी शायर हाजी बशीर मुल्तानी और सीनियर साफी मदर जावेद समेत दीगर समाजी और रवायत पसंद शख्सियात की कसीर तादाद ने मुशावरती इजलास में शिरकत की। इनका कहना था कि हमारे रिवायती खाने ज्यादा सेहत बख्श हैं। मिट्टी के बर्तनों में खाना पकता था, मिट्टी के बर्तनों में खाना खाया जाता था, साग बनता था, सुहांजना पूरी दुनिया में इस वक्त जो है उसकी इम्पोर्टेंस देखें कि वो कई बीमारियों का इलाज है। मतलब अमेरिका जैसे इलाके में अगर कोई दरख्त लगा देता है सुहांजना का तो उसे तो पता नहीं कितने इनामात मिलते हैं। ते सुहांजना एडू खास सरायकी इलाके दियां खास सब्जियां हैं। एक खास दरख्त सरायकी इलाके में थींदे हैं। इन्हां तलक पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या दुनिया के कंहिं इलाके नाल ही कहनी। बाकी लोग इन्हां कोल नामानूस हैं, कोई वाकफियत कोई नहीं। मुशावरती इजलास के शुरका को रवायती सरायकी खाने भी पेश किए गए। चेयरमैन सरायकिस्तान कौमी कौंसल ज़हूर दरेजा का कहना था कि सरायकी फैमिली फूड फेस्टिवल का मकसद सरायकी वसेब के रिवायती खाबों को मुतारिफ करवाना है ताकि दम तोड़ती रिवायत को जिंदा रखा जा सके। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। मुल्तान जनरल पोस्ट ऑफिस में 7 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया। मेडिकल कैंप पाकिस्तान पोस्ट और ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन के इश्तराक से लगाया गया। मुल्तान जनरल पोस्ट ऑफिस में 7 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का आगाज। अफवा के इश्तराक से मुनक्किदा मेडिकल कैंप के इफ्ताह पर चीफ पोस्ट मास्टर मुल्तान फायजा खालिद राव, चेयरपर्सन अफवा फरा फैसल मुख्तार, वाइस चेयरमैन अफवा मिस ताहिरा नजम, मिस तहमीना मुनीर, डॉक्टर एहसन, डॉक्टर माया, इसाक खान बलोच, अब्दुल रऊफ खान, शाहिद यूसुफ और इसारुल हक भी मौजूद थे। फरा मुख्तार का इस मौका पर कहना था कि गरीब मुलाजमीन और उनके अहले खाना की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। कि महकमे के तमाम लोग और इर्द गिर्द के लोग जिनको कोई खुदा न खास्ता तकलीफ हो सकती है वो भी आके इस फायदा लें। यहाँ पे पर्ची के साथ मुफ्त दवाइयाँ भी फराहम की जा रही हैं। अगर किसी को फर्दर इन्वेस्टिगेशन या मेडिकल एड की ज़रूरत होती है तो ये डॉक्टर को रेफर भी करते हैं और टेस्ट भी करवा देते हैं। वाइस चेयरपर्सन अफवा ने कहा कि गरीब और नादार मुलाजमीन के साथ साइलिन भी फ्री मेडिकल चेकअप और अद्वियात की सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। डिस्पेंसरी का मकसद है बेसिकली अंडर प्रिविलेज्ड और लेस फॉर्चुनेट लोगों को पूरी तिबी सहूलियात देना। जैसे आपको पता है कि जितने भी चाहे सरकारी अस्पताल हैं उन पे आपको पर्ची सिस्टम बनाना पड़ता है। पर्ची है, फिर आगे जाएं, फिर प्रोफेसर्स के पास जाएं, उसकी में उनका सारा दिन ज़ाया होता है। फ्री मेडिकल कैंप में मुफ्त चेकअप, फिजियोथेरेपी, टेस्ट और अद्वियात फराहमी जैसी सहूलियात मुयस्सर हैं। कैमरामैन आसिफ के साथ नादिर मजहर, रोही, मुल्तान। और आपको बताएं मुल्तान में महकमा स्पेशल एजुकेशन का खसूसी बच्चों के लिए स्पीच थेरेपिस्ट क्लास का इनेकाद किया गया है। महकमा स्पेशल एजुकेशन का खसूसी बच्चों के लिए एहसन इकदाम। महकमे की तरफ से कुव्वते समात और गोयाई से महरूम तलबा के स्कूल में स्पीच थेरेपिस्ट की क्लास का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा की बोलने की सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करवाई जाती हैं। यहाँ पे हम माइल्ड, मॉडरेट टू सीवियर एंड प्रोफाउंड तमाम किस्म के हेयरिंग लॉस के स्टूडेंट्स को डील करते हैं। स्कूल में इनको स्पीच थेरेपी की सहूलत दी जाती है। ऐसे बच्चे जो हार्ड ऑफ हेयरिंग के साथ हैं उनके लिए भी स्पीच सेशन का कंडक्ट किया जाता है और ऐसे बच्चे जो प्रोफाउंड लेवल पे हैं उनकी भी स्पीच थेरेपी की जाती है। इनके डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए जाते हैं जिनमें से कुछ ऑरल पे, कुछ लिप्स रीडिंग में हैं, कुछ इनमें से ऐसे बच्चे हैं जो हेयरिंग एड लगा के हैं। गवर्नमेंट स्पेशल स्कूल में पहली जमात से लेकर 9वीं जमात तक के बच्चों के लिए क्लास का इनेकाद किया जाता है। स्पीच थेरेपिस्ट का कहना है कि इनमें से कुछ बच्चे बोल सकते हैं, इन्हें बस ट्रेनिंग की जरूरत होती है। हम कैटेगरी सी के बच्चों को कुछ हद तक बोलना सिखा देते हैं। दूसरी तरफ तुलबा भी इन क्लासेस के इनेकाद से खुश नजर आए। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्पेशल के तमाम इदारों में स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट तैनात की हैं, जहाँ पर हमारे जो समाज से महरूम बच्चे हैं माइल्ड लेवल के और मॉडरेट लेवल के होते हैं या हार्ड ऑफ हेयरिंग होते हैं, उनकी स्पीच को इम्प्रूव करने के लिए डेली स्पीच थेरेपिस्ट सेशन लेती है और हमारे
जितनी भी मोस्टली बच्चे होते हैं माइल्ड या मॉडरेट लेवल के, उनकी स्पीच बेहतर होती है। स्कूल प्रिंसिपल मियां मोहम्मद माजिद का कहना था कि कुव्वत समात और गोयाई से महरूम बच्चों को ये ट्रेनिंग मुफ्त फराहम की जा रही है। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में आएं। हुकूमत पंजाब ये तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम कर रही है, जो खसूसी बच्चों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ अलिशबा आसिफ रोही, मुल्तान। मुल्तान में महकमा हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब के ज़ेर एहतमाम सालाना खेलों के मुकाबले जारी। दूसरे मरहले में लड़कियों के इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। तालीमी इदारों में खेलों के मुकाबले अरूज पर हैं। अमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान के क्रिकेट ग्राउंड में महकमा हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब के जेर एहतमाम दूसरे सालाना मुकाबले जारी। बॉयज के साथ साथ गर्ल्स के भी इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट मैचेस का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर कॉलेजेस मुल्तान डिवीजन डॉक्टर अबुल हसन का कहना था कि बड़ी खुशी हुई, तालिबात भी गैर निसाबी सरगर्मियों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में काउंट होती हैं, अब ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होती हैं। इट्स ए पार्ट ऑफ योर स्टडीज़। हेल्दी जो बॉडी है वो कीप्स द हेल्दी माइंड। उसके लिए ज़रूरी है कि ये फिजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़रूरी चीज़ थी, जिसका मतलब इदराक जो है ना हमारी जो विजनरी सेक्रेटरीज हैं उन्होंने की और उसके बाद उन्होंने ये सारे जो इवेंट्स हैं उनको कंडक्ट किए है। मुकाबलों में शरीक तालबात कहती हैं कि क्लासरूम की रूटीन से हटकर मैदान में खेलने से कई अमली असबाक सीखने को मिलते हैं। पहले तो जब स्कूल लाइफ में थे हम लोग ग्राउंड में खेल लिया करते थे, इतना नहीं था, लेकिन जैसे हम लोग कॉलेज लेवल में आए, फर्स्ट ईयर में हमें खेलने का मौका मिला, तो जो फर्स्ट ईयर में हम लोग जीते तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तो हम लोग जीत गए थे। उसके बाद डिवीजन लेवल हुआ, फिर उसमें थोड़ा रह गए थे, तो फर्स्ट ईयर वहीं पे स्टॉप हो गई थी। अब हम लोग सेकंड ईयर में आए हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल हम लोग जीत चुके हैं। अब माशाल्लाह अब डिवीजन लेवल खेल रहे हैं। इंसान में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि अगर आप हार गए तो ये नहीं कि आपने हार गए हैं बस खत्म, लेकिन हार से हमें ये उम्मीद होती है कि हार जैसे सूरज डूबता है ना, एक उम्मीद होती है कि हाँ अगले दिन सूरज उगेगा भी सही। इसी तरह हम हार गए, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर हार भी जाते हैं, हमें ये तो होगा ना कि नेक्स्ट टाइम हमारे पास चांस है। डिस्ट्रिक्ट मैचेस में फतह याब टीमें सूबाई लेवल पर खेलेंगी। तालबात अपनी अपनी टीम की जीत के लिए पुरअज़म नजर आईं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। सरगोदा में हायर एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम रंगारंग स्पोर्ट्स गाला का मैदान सज गया। सरगोदा में हायर एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम रंगारंग स्पोर्ट्स गाला का मैदान सज गया, जिसमें सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, बखर, सल्लावाली की खवातीन कॉलेजेस की टीमें शिरकत कर रही हैं। इंटर कॉलेजिएट वेमेन स्पोर्ट्स में रस्साकशी के मुकाबले मुनक्किद होंगे। रस्साकशी का इब्तिदाई मैच गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन बखर और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन चांदनी चौक की टीमों के दरमियान खेला गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन चांदनी चौक की टीम ने दिलचस्प मुकाबले के बाद ये मैच जीत लिया। आज हमारे कॉलेज में ओपनिंग सेरेमनी है, जो इंशाल्लाह हम लोग जितने भी मैचेस हैं विन करेंगे, जिनमें वॉली, टग ऑफ वॉर, क्रिकेट, बास्केटबॉल वगैरह हैं। इंशाल्लाह वी प्लेड वेल। हम लोग यहाँ पे इब्तिदाई तकरीब में, और हमारी गेम वॉलीबॉल और क्रिकेट है और इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से जीत के जाएंगे। और आज हमारे यहाँ पे ओपन सेरेमनी है और जिसमें टग ऑफ वॉर और वॉलीबॉल के मैचेस हैं और हम इंशाल्लाह ये मैचेस ज़रूर विन करेंगे। तालबात का इस मुकाबला जात में शिरकत करना न सिर्फ बेहतर सेहत की जमानत है, बल्कि मुआशरे में भी मजबूत किरदार अदा कर सकती है। कैमरामैन राजा शाहिद के साथ सैयद जवार हुसैन काजमी, रोही, सरगोदा। इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोही।